છાત્ર સાંસદ કોન્ક્લેવમાં ઇસરોના ચેરમેન વડોદરામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। શહેરના સન ફાર્મા રોડના એલબીજી ક્લબ ખાતે યોજાયેલા છાત્ર સંસદ કોન્ક્લેવમાં ઇસરોના અધ્યક્ષ એસ સોમનાથે જણાવ્યું હતું કે દેશમાં પ્રતિભાની ખોટ નથી। ગંગાયાનનું ફર્સ્ટ મિશન 2025માં થશે। સુરક્ષા અમારી પ્રાથમિકતા છે। ગુજરાત છાત્ર સંસદ કોન્ક્લેવમાં ઇસરોના અધ્યક્ષ એસ સોમનાથે જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડિયન હ્યુમન સ્પેસ ફ્લાઇટ પ્રોગ્રામ 4 વર્ષ અગાઉ શરૂ થયો હતો। ગંગાયાન કોરોનાને કારણે તેમાં વિલંબ થયો હતો। આ વિષયમાં પીએમએ અમારી સાથે વાત કરી હતી। આ મિશન માટે અમે સંપૂર્ણ તકેદારી રાખી છે। હજુ 3 ટેસ્ટ ફ્લાઇટ થશે। ગંગાયાનનું ફર્સ્ટ મિશન 2025માં થશે। ઇસરોમાં નોકરી મુદ્દે એસ સોમનાથે કહ્યું હતું કે ભારતમાં પ્રતિભાની ખોટ નથી। રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યોગદાન આપનાર વ્યક્તિ પ્રશંસાને પાત્ર છે। બીજી તરફ નાસા અંગે એસ સોમનાથ બોલ્યા હતા કે નાસા અને ઇસરોમાં સ્પર્ધા નથી, અમે પરસ્પર સાથે કામ કરી રહ્યા છે। સિન્થેટિક એપર્ચર રડાર મિશન નાસા અને ઇસરોનું જોઈન્ટ મિશન છે, જેમાં અમે જવાબદારી વિભાજિત કરી છે। ઉપગ્રહમાં એલ બેન્ડ રડાર નાસા અને એસ બેન્ડ રડાર ઇસરોનું યોગદાન છે। આ રડાર દર 15 દિવસે પૃથ્વીની ઇમેજ લે છે, જેનાથી પૃથ્વીની મૂવમેન્ટ જાણી શકાય છે। બરફ, ગ્લેશિયર, ક્લાઇમેટ ચેન્જ, પાણી સંબંધિત ડેટા મેળવી શકાય છે। આ નિઃશુલ્ક વૈજ્ઞાનિક ડેટા ભારત અને અમેરિકા સહિત સમગ્ર વિશ્વ માટે ઉપયોગી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે આ પ્રસંગે બીઆરજી ગ્રુપના ચેરપર્સન લતાબેન ગુપ્તા, સરગમ ગુપ્તા, વૈષ્ણવાચાર્ય વ્રજરાજ કુમારજી, સીપી अनुपमसिंह गहलोत, विद्यार्थियों ने वालियों उपस्थित रहा था। Now we have first target is that we should have the actual human space flight happening in 20 हिंदी हो जाए हिंदी तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सर। मैं अभी तो उन्होंने भी सर मैं आऊँगा तो सर कैमरा आ जाएगा। हिंदी में सर। हिंदी में मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है। अच्छा तो मैं ट्राई करूँ। जी जी जी। अच्छा, हमारा गगनयान प्रोग्राम जो है वह 4 साल पहले थी हमने शुरू किया था। उसके बाद जो डिले होता था उसके कोविड के कारण, पर अब हमारा ये शेड्यूल में रीफिक्स किया है। प्रधानमंत्री जी ने हमको ये इसके बारे में कई बातचीतें की और हमारा नई दिशा दी है इसमें। तो हमारा फर्स्ट मिशन जो होगा 2025 में, उसके पहले का ये टेस्ट फ्लाइट्स थे। हमारा ये पहला टेस्ट फ्लाइट था, ये टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन था, उसको पूरी किया अच्छी तरह। हमारा उसके बाद हमारा 3 टेस्ट फ्लाइट्स होने वाला है। और हमारा पहला अनमैन्ड मिशन जो है उसका हम GX बोलते हैं, ये तो होगा अगले साल जून पे। इसके बाद हमने ये अनमैन्ड मिशन 2 बार और रिपीट करेगा। ये सभी अच्छी तरह होते तो हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तो करेगा और एस्ट्रोनॉट को ले लेंगे तो ऑर्बिट पर, और उसके वापस सेफ लाना है तो हमारा एक बहुत कमजोरी बात है। तो सेफ्टी फर्स्ट। सो फॉर सेफ्टी फर्स्ट वी हैव टू डू लॉट ऑफ टेस्ट, हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट। हमने जो बोला है तो ये मेन टेस्ट है, और जो स्मॉल टेस्ट है जो होते हैं आपके नज़र में नहीं आते और मीडिया में नहीं आते, ये सभी होते रहते हैं हमारे सेंटर्स में। सो ये सभी टेस्ट अच्छी तरह होते तो समूह करेक्शन कर सकते हैं और फाइनल डिसीजन ये हमारे एस्ट्रोनॉट को भेजे या ना भेजे ये हमने ये 2025 में ले लूँगा। तो हमारा शेड्यूल है अब 2025 में हमको ये लॉन्च मिशन कर सकूँगा। ये the cricketers and movie stars deserve their credits, their worship of the stardom. All things are very good. I don't find anything wrong with that. But you add scientists into it, I feel very happy about that element. So if some scientists are becoming like Bollywood stars, I should be very happy about it and I should be very proud about it. And we want more such people to come, really. So it's nothing wrong with that. It's not only scientists, it's so many domains, social workers, politicians, all of them are stars on their own might. हमारे जो सेंटर्स में जो वैकेंसी आते हैं कई साल में हमारा वैकेंसी 100, 150, 200 तो अब जाते हैं। सो एवरी सिंगल एप्लीकेंट देयर आर 1000 एप्लीकेंट, पोजीशन 1000 एप्लीकेंट। सो हमारे जो टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट हम जो करते हैं फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर्स के लिए एप्लीकेशन से 1.5 लाख एप्लीकेशन मिलते हैं। ये सभी जगह से मिलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से है, NIT से है और लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से और IIT में भी। सो ये टेस्ट में बहुत ब्रिलियंट लोग आते हैं जो हमारे टेस्ट के बाद हमने इंटरव्यू करते हैं। फॉर 100 वैकेंसी वी इंटरव्यू 700 पीपल
इसके बाद हमने जो सेलेक्ट करते हैं जो 100 सिर्फ 100 पीपल को, हमको इसी से समझ सका कि इतना कॉम्पिटिटिव है। सो आज ISRO में जाना और अपॉइंटमेंट मिलना बहुत कठिनाई की बात है। और कोचिंग सेंटर्स भी है, ISRO जॉब के लिए अपने कोचिंग सेंटर भी लाइक IIT वाले ऐसे कोचिंग सेंटर्स भी खुले कई जगह। सो हमको टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्या कैसे IIT में से और नो IIT में से NIT में से हमको मिलते हैं। तो मैंने मैकेनिकल से मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आई वेंट दिल्ली जाके पहले तो गुजरात से बहुत कम बच्चे, मैंने 2014-15 में एक वो फैसला लिया और घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि नहीं चलो उधर चलते हैं। एक इंस्टीट्यूट था सर, वहाँ हमारे हिस्ट्री टीचर हुआ करते थे, अभी भी हैं, गुरु हैं तो गुरु ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग। और उन्होंने बहुत अच्छी बात एक बोली थी जो मेरी लाइफ में एग्जैक्ट डिट्टो वो कहीं ना कहीं बैठती है कि जैसे प्रश्न पूछते हैं ना कि सर व्हाट इफ़ कि हम जितनी भी हमारे अटेम्प्ट्स हैं सिविल सर्विसेज के, अगर हम क्रैक नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे लाइफ के साथ। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अपना करियर छोड़ के दूसरे सब पापा का बिजनेस छोड़ के इसमें आ जाते हैं, उसके बाद क्या, एक एज भी हो जाती है फिर तो करेंगे क्या फिर। तो सर का एक बहुत अच्छा सा आंसर नहीं था, ज्ञान था। और वो अगर हम मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, अगर थोड़ा वो क्वाट है ना वो अपने दिमाग में उतार ले तो कोई फिक्र करने की या फिर कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है फॉर करियर के रिगार्डिंग। सर ने बोला कि इतना ज्ञान, हर विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको मिल रहा है यहाँ इस कोचिंग के माध्यम से, चाहे हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे भौतिक शास्त्र ले लीजिए, रसायन शास्त्र ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, मेडिकल फील्ड ले लीजिए, कोई भी विषय वस्तु ऐसा नहीं है कि UPSC के प्रिपरेशन के दौरान आप नहीं पढ़ेंगे। कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन बन जाएंगे, MP और MLA बन जाएंगे। सो दिस इज द थिंग जो मेरे साथ हुआ। एंड मैं हर रोज़ सर के वीडियो देखती हूँ, जब भी जो एक मॉरलिटी चाहिए आपको, एक बूस्टर डोज चाहिए आपके फील्ड में या फिर पर्सनल लाइफ में। इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, ऑरेटर एंड मोटिवेशनल कंटेंट इनका रहता है। तो ये जो फैक्ट बात है कि, और सर आपने अभी पूछा कि ब्यूरोक्रेसी में आ जाते तो पॉलिसी मेकर बन जाते, तो मैं वही एक करेक्शन करना चाहूँगी कि सर आना वहीं पे था, लेकिन इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होता है, तो प्लान वही था। देन आई क्रैक्ड डिफेंस का जो रिटर्न एग्ज़ाम, बट SSB आने वाला था, तब आई गॉट एंगेज और उसके बाद शादी हो गई, जल्दी फैमिली स्टार्ट हो गया। तो लाइफ का एक जो डाइवर्जन होता है ना, लेकिन एक चीज़ होती है कि जो हम हैं इंडिविजुअल, वो बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वो हमारा मोटिव, मेरा मोटिव था कि मुझे सो एंड सो माध्यम से देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ भी, चाहे वो माध्यम ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे वो माध्यम पॉलिटिक्स का हो। और उससे इन बिटवीन आई मेट अवर ऑनरेबल PM सर, मोदी जी से मैं मिली, उन्होंने बातों बातों में बोल दिया कि इतनी सेवा के काम आप करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप 200 जितने विलेजेस घूमी हैं, स्त्री सशक्तिकरण के लिए आप काम करती रहती है, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन पार्टी। तभी मैंने सर से बोला कि सर ऐसा सोचा नहीं है पॉलिटिक्स में एंटर करना। तो उनका एक बहुत अच्छा सिंपल सा था कि हम बहुत ही छोटी छोटी बातों में सोसाइटी को या फिर गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, क्रिटिक करना। तो ये बहुत ही लाइक नॉर्मल बात है कि हम इजी जैसे क्रिटिक कर दिया, कमेंट कर दिया, कोस दिया। अगर आप कुछ चीज़ें बदलना चाहते हो, कुछ अच्छे प्रोस्पेक्टिव में सोसाइटी को देना चाहते हो, तो आपको खुद को उसमें उतरना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल ये पॉसिबल ही नहीं है कि बाहर से तमाशा देखो, भाई हमें तो पैर पे पैर रख के टीवी देखते उठते सरकार को कोसना है या फिर यूथ को कोसना है या फिर सो एंड सो समाज को कोसना है। ये ठीक करना है, अपने हिसाब से चलाना है, अच्छी डायरेक्शन में देश को और समाज को लेके चलना है। सर, भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता वो चुनाव को ध्यान में रख के काम नहीं करता। हमारे लिए 365 दिन हमारे लिए पार्टी की जिम्मेदारी है, समाज के प्रति जिम्मेदारी है और डेवलपमेंट के काम के प्रति जिम्मेदारी है। इट्स नॉट अबाउट 2024 और इट्स नॉट अबाउट 2029 और 27।
इट्स ऑल अबाउट डे टू डे वर्क, डे टू डे लाइफ, डे टू डे जन जन तक पहुंचना, यही एक एजेंडा रहता है पार्टी का। सर ने बोला वो मेजर पर्सपेक्टिव के ध्यान में रख के बोला। एज ए इंडिविजुअल अगर आप मेरे बारे में सर को पूछेंगे तो उनका ओपिनियन अलग होगा, किसी और के विषय में पूछेंगे तो उनका ओपिनियन अलग होगा। इट्स लाइक उनका जो कमेंट था वो मेजोरिटी लोगों को फोकस में रखते हुए, वरना आप ही बताइए मुझे क्या जरूरत है पॉलिटिक्स करने की। आराम से अभी साउथ अफ्रीका घूमती, मैं सफारी वफारी करती, 5 स्टार होटल में रहना होता। आपको रोका नहीं कि आप मत जाओ पॉलिटिक्स में घर में? सर मेरे जितने मीन्स फ्रेंड सर्कल है मेरे ग्रुप में है, उन्होंने बोला क्या जरूरत है, तब एक ही इनर कॉन्शियस, बिकॉज मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड जिस बैकग्राउंड से, उनका जो अभी क्रिकेट चल रहा है वो बहुत ही अपोजिट है। उनका पेपराजी आप जैसे मीडिया पर्सन से रोज बरोज का जो इंटरेक्शन होता है, कांस्टेंट आपके एक लाइफस्टाइल पे फोकस रखा जाता है, ब्रांड्स, अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब देखा जाता है। मैं ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी नहीं हूँ, नॉर्मल सी लाइफ है। स्टूडियस मेरा जो एजेंडा रहा था कि पढ़ के लिख के कुछ आगे बनना है, मेजोरिटी जो यूथ का होता है, तो ऑब्वियसली जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि एक एक्चुअल लाइफ है और एक एक्चुअल आप हो, आप किसको प्रेफर करते हो। तो मैंने ही बोला था कि दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरी लाइफ नहीं है। तो मुझे ये ऐसे मीन्स जीना, जिनकी वाइफ हूँ उससे आइडेंटिफाई करके जीना मेरे लिए प्रिविलेज है, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मुझे बहुत ही गर्व है। लेकिन अपने आप में हु आई एम, इतना पढ़ लिख के मैं क्या कर रही हूँ, तो इसका जवाब देना और उसको फुलफिल करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર।